तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। आइए आइए आइए, लाइट लाइट तुझे लाइट। अरे बता रहा हूँ नहीं ये बाबू जी। मदन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आइए 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 आइए। एक मिनट आँख मत खोलना, खोलिए। भागेश्वर जी, ये सब क्या है? सरप्राइज। पर आज कोई खास दिन है क्या? तो प्यार करने वालों के लिए कोई दिन खास नहीं होता है, जो दिन वो साथ में मिलके मनाते हैं वही दिन खास बन जाता है बावरी जी। सही कहा आपने। पर अभी चलते हैं, अगर टीका जी आ गए तो? टीटा जी नहीं बावरी जी, जेठा जी। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि क्या है, सेठ जी आज बारगांव गए हैं, दुकान आने वाले नहीं है, और नट्टू काका ने भी छुट्टी ली है, तो आज इस गदा इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ बागा और बावरी, नो कस्टमर ऑल्सो। भागेश्वर जी। बावरी जी, सबसे पहले एक मिनट नहीं, सबसे पहले आप केक कट कीजिए। अच्छा, केक भी मंगाइए खास आपके लिए। आराम से। क्या बात है, क्या बात है। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है ना? आइए, और भी सरप्राइज है आपके लिए। और सरप्राइज? रुकिए रुकिए। आई लव यू बावरी जी। I love you too, भागेश्वर जी। Thank you, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छे है ना, बिल्कुल आपकी तरह। एक मिनट और एक गिफ्ट। और कितना? बोलिए। कितने गिफ्ट लाए करती है? ये फोटो कितना प्यारा है। याद है हमारी दूसरी यादगिरी? हाँ, बागा एंड बावी, B&B। ये भी। बावरी जी, एक बात कहूँ, आपके साथ डांस करने का बहुत मन हो रहा है। ये तो नैले पे देना, मुझे तो डांस पसंद ही है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and Done? Done. Cut. नाइस। Very nice, Correct. very nice। वन शॉट। एक फोटो लेना है, ऐसा तो ले लीजिए। केक बैठ। आइए वाला। केक आएगी तो जा। या एकदम बुके हो। दिस साइड, स्टार्ट दिस साइड। या One second, one second. स्टार्ट दिस साइड। या थोड़ा सा टिल डाउन करिए ना। हाँ हाँ क्लियर है। बेटा यस, मैं लुक क्या है बात है, साइड क्या में। बात है। सर मैं क्या बात कैमरा एक बार ये साइड कर दो ना, बाजू भाई राउंड में। परफेक्ट। अनुसार एक मेरे को नाइस। थैंक यू सर। Okay, now we'll do the rapid fire and then one last janta. नितिन। बस ऐसे है काम? नितिन। Standing. नितिन उठे गया नितिन। So you know ना photo से कितना होगा? Yeah. नहीं, ये आपके favorite है। केक ले लेना। नितिन कुठे गेला? These are each one has to answer. Yeah. Like it's a rapid fire. What is your favorite song? So you can guess for her.
She will ask. So I'll pick up the chip. I'll read the question, and she responds. So, Then she'll pick up the chip. She'll ask the question. yeah, so I have to how you know answer. each other? पढ़ लो तुम लोग। नवीना? Do the spray for Navina spray. No, you can finish each sentence. Like she will, for example, suppose question is, आपका favorite person कौन है? So you will answer. You have to एक चीज the whatever question she picks up. No, Then you correct it whether it's right or wrong. she's reading the question. So I have to answer. Not her. लेकिन मेरा फेवरेट हाँ, या हो जाता तो इसमें It's a partner question. So both of the questions you will have to answer for her. And then she will say it's right or wrong. Suppose आपका means her favorite color कौन है? So you said red. So she says pink. Means one or wrong. Like that. How well you know each other? आपका तुम करेंगे। हाँ, favorite color. बताइए मेरा भी। No, don't ask cross. First finish with you and first finish with her. Like you will answer. That's what I'm asking. I'll do chips. First I'll pick up. Yeah. इसमें आपका लिखा So है। if you want, I will ask you. हाँ तो better repetition। Yeah. मैं इधर खड़े रह के पूछती हूँ. हाँ। So these are basically partner rapid fire. How well then you know each other. Who will win this round? Okay. So first we open the checks. ये open करो मेरे. सर लुक सेंटर ही रहेगा Look it. राइट अभी जानते हैं कितने how well you know each other. Yes. So बागा जी आप पहले बाबरी के सारे आंसर देंगे. And Babri, you have to confirm whether he's right or wrong. Okay. Then we will see who's the winner. So what is Babri's favorite color? Red. राइट आंसर Okay. और उनका फेवरेट खाना क्या है? पाव भाजी। सही बात अरे ये तो मतलब ऑलरेडी 2 on 5. उनकी फेवरेट रोमांटिक मूवी कौन सी है? फेवरेट. DDLJ. और उनकी ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है? कहाँ पे आप लेके जाएंगे उनको घूमने के लिए? उदयपुर। They're already like 4 on 5. And what is Babri's favorite song? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। बाकी सोच मुझे पूरी तरह से जानते हैं और लास्ट बाबरी का सबसे फेवरेट पर्सन कौन है? Obviously बागा। इसमें तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं Okay, so then Baga is, so you have to beat him now. Okay. बागा का फेवरेट कलर कौन सा है? हम दोनों का फेवरेट कलर सेम है रेड सही जवाब। और फेवरेट खाना? पाव भाजी पाव पी, वही होता है पी, पी। पहले हम जाके पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखते देखते पॉपकॉर्न खाते हैं और फिर पाव भाजी खाते हैं। और फिर फेवरेट मूवी भी सेम. हाँ DDLJ। हमने तो कितनी बार जाके देखी है इसीलिए उसके ऊपर डांस कर लेते हैं. Yes। और ड्रीम डेस्टिनेशन ट्रैवल? हमारा डेस्टिनेशन तो एक ही है उदयपुर उदयपुर। और फेवरेट गाना तो फिर DDLJ का ही होगा. कुछ अलग बताइए, मेरा तो बहुत है, कुछ अलग ही बोल सकते हैं। गुम है किसी के प्यार में भी बागेश्वर जी में क्या गाना चाहेंगे? गा सकते हैं, गाओ। हाँ. गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम। और आपका फेवरेट पर्सन उनका कौन है? इनका फेवरेट पर्सन तो मैं हूँ और मेरे ये है Obviously, हाँ. उनकी से
बावरी Okay, जी just हैं। last two बावरी जी questions. हैं। now भी ये दोनों के लिए सबसे important. अगर आपको अपनी लव स्टोरी को एक फिल्म का टाइटल देना हो तो वो क्या हो? मैं बताऊं बावरी जी, BBLJ, मतलब बागेश्वर बावरी जी को ले जाएंगे। That's obviously. और लास्ट, आप अपने पार्टनर के लिए कौन सा रोमांटिक निकनेम रखेंगे? मैं तो बागेश्वर जी को बाबू बुलाती हूँ। मैं भी बावरी जी को बब्बू ऐसे ही बुलाता हूँ। और अगर ढेर सारी दौलत मिलेगी और ऐशो आराम और प्यार के बीच में आप क्या किससे चुनेंगे? प्यार, मेरा भी जवाब प्यार ही है। क्योंकि क्या है, मेहनत करके इंसान दिन रात एक करके खूब सारी मेहनत करके पैसा कमा सकता है, लेकिन ऐसा सच्चा प्यार कमाने के लिए नसीब चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तो प्यार तो नहीं मिल सकता, वैसे तो मेहनत से इंसान कमा सकता है। तो मेरा जवाब है सच्चा प्यार। मेरा भी जवाब सच्चा प्यार ही है, क्योंकि बागेश्वर जी जैसे भोले भाले इंसान जो मुझसे इतना प्यार करते हैं और कभी पैसों के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा मुझसे प्यार करते रहता है, प्यार करते रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। राइट। Okay, now we can have the Janta bite on the track, just 2 minutes and then we are done. Okay? Okay. You can just quickly both of you. Correct. पीछे 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 बूम, पीछे से बूम ले लो, उधर से ले लो। ठीक है भाई। हाँ। राजा भाई बावली जी गजब हो रहा वहाँ पे। Ready, good to go. Yeah. राजा भाई बावली जी आपका जो लव स्टोरी ट्रैक जो है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, बट वही कहीं ना कहीं जो बावली जी का दोस्तार है, आपका जो अनजान दोस्तार था, उसने फाइनली अपने दिल की बात जो है आपके सामने रख दी है और आपको 5 करोड़ का ऑफर दिया है, तो क्या करने वाले हैं आप इसके लिए? अभी तो फिलहाल मैं बाघा वही डायलेमा में है कि 5 करोड़ लेने या बावरी को एक्सेप्ट करना। तो जैसे आप आगे एपिसोड्स देखेंगे आपको पता चलेगा कि बाघा क्या करने वाला है, और या वो बालम का ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा और बावरी को छोड़ देगा, या बावरी को 5 करोड़ का ऑफ़र ठुकरा के बावरी को अपनी लाइफ में वापस ले आएगा। बावली जी बागा जी के पास पैसे थोड़े कम है, लेकिन वही पे सामने जो बंदा है वो आपका स्कूल का पुराना बचपन का प्यार है, एक तरीके से उनको आपसे प्यार है, वैसे में आप क्या चुन रहे हो, पैसा या प्यार? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, बावरी को भी पता ही नहीं है कि बालम अभी हाँ, ये तक पता है। बागा से मिला है या। बट अगर प्यार या पैसा इसमें जवाब देना है तो बावरी तो हमेशा प्यार को ही चुनेगी, क्योंकि जैसे इतने टाइम से आप देखते आ रहे हैं बागा और बावरी का प्यार कितना प्योर है, कितना इनोसेंट है। सो बावरी के लिए आई डोंट थिंक पैसा इतना मैटर करता है, बट प्यार डेफिनेटली बावरी के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। 17 साल पूरे हो चुके हैं, 18वां साल चल रहा है, आप दोनों की लव स्टोरी जो है लोगों को बहुत पसंद आ रही है, वैसे में आप दोनों की शादी कब हो गया, बाद में जब घर कब खरीदे बावली जी से शादी करने के लिए? भाई इसका जवाब तो अभी बंदे थे, आसिफ भाई वही बता सकते हैं कि बागा की शादी कब करवाएंगे। जैसे पोपटलाल की शादी के लिए वही निमित्त बनने वाले हैं, वैसे ही बागा बावरी की शादी के लिए वही कारण बनने वाले हैं। लेकिन होपफुली बहुत जल्द बागा बावरी की शादी भी हो जाएगी और बागा का एक घर भी हो जाएगा। हाँ, मेरे लिए तो ये सरप्राइज ही था, और सरप्राइजिंगली जेठा जी भी शॉप में नहीं है, तो ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि बागा बावरी को शॉप में आके एक दूसरे से बातें करनी मिले, क्योंकि हमेशा एक टेंशन रहता है कि सेठ जी आ जाएंगे, मुझे चिल्लाएंगे, इन्हें चिल्लाएंगे, पर आज नहीं थे और उन्होंने इतना अच्छा मेरे लिए सेटअप किया था, बलून्स, बुके, केक, गिफ्ट। सो मैं तो बहुत खुश हूँ। जेठा जी की एंट्री होती है तो वही कि मुझे भी डांट पड़ती, इन्हें भी डांट पड़ती, नहीं, और शायद ये सेठ जी सब की एंट्री होती तो ये हो सकता कि सब रहता, ये दो नहीं रहते। ये दो शायद दुकान के बाहर होते, बलून बाकी सब सब तो यही फूट गए रहते होते और सब। बलून टूट गए होते सब।
हाँ करता हूँ, देखते हैं अब ये क्या करती हैं बावरी बाघा के लिए। बाघा ने तो इतनी जहमत उठा के ये सब किया है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब बाघा को भी ऐसी वंडरफुल और लवली सरप्राइज मिलेगी। बाघा बावरी को देखा जाए तो इन दोनों को एक दूसरे में कोई भी फ्लॉज दिखते ही नहीं है। जो भी है वो कमिटमेंट ही दिखता है, वो प्योरनेस ही दिखती है। और जैसे बावरी गलती से मिस्टेक करती है तो बाघा बहुत प्यार से उस मिस्टेक को सुधार भी लेता है। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक दूसरे की नापसंद हो। जब सच्चा प्यार होता है और एक दूसरे के साथ दिल से कनेक्टेड होते हैं तो आई थिंक हमें ये लाइफ में भी सीखना चाहिए कि फ्लॉज हर एक इंसान में होता है, लेकिन उस फ्लॉज को साइड में रख के लाइफ को हैप्पीली पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा और बावरी अब तक साथ में है, इतने सालों की उनकी लव स्टोरी, एक लॉन्ग लव स्टोरी है। आज की जनरेशन में 1 महीने की कमिटेड रहना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दिस हेल्दी रिलेशनशिप जो इतने सालों से बाबा और बावरी कैरी कर रहे हैं? ये बावरी जी बताएंगी। द सीक्रेट आई फील इज कि जैसे आपने अभी कहा कि आजकल के जनरेशन में इट्स डिफ़िकल्ट कि रिलेशनशिप्स बहुत दूर मतलब लंबे समय तक रहे, क्योंकि उनमें एक तो ट्रस्ट की कमी है, लॉयल्टी की कहीं ना कहीं आती है। बहुत जल्दी इंसान अपने ईगो पे ले लेता है, गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि बावरी इतनी गलतियां करती है, हर नाम में गलती करती है, कुछ भी फटाक से बोल देती है बिना सोचे, बट कभी भी बाघा बावरी पे गुस्सा नहीं हुआ है। उन्होंने हर चीज़ को समझ के लिया है, बावरी की हर कमी को उन्होंने समझ के लेने की कोशिश की है। तो ऐसे ही अगर नई जनरेशन भी एक दूसरे को समझे और गलतियों को माफ़ करती रहे, मतलब छोटी छोटी गलतियाँ कोई बड़ी गलती नहीं, पर अगर ऐसे समझ के लिए एक दूसरे को तो आई थिंक ये रिलेशन उनका काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। और मेरा ये मानना है रिलेशनशिप हैज़ टू बी मोर ऑफ इमोशन देन बीइंग प्रैक्टिकल। आज का जो जनरेशन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो अगर 1 महीने में बात नहीं बनती तो इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। वेयर इज इमोशन, लव इज़ समथिंग वेयर यू नीड टू गेट इमोशनली कनेक्टेड फर्स्ट, कमिटेड फर्स्ट। सो मेरा ये मानना है कि जहाँ जितने इमोशनल बॉन्डिंग होगा एक दूसरे के साथ, तो ये ब्रेकअप्स एंड मूव ऑन वाला जो सिस्टम है वो शायद धीरे धीरे जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंसान को बेसिकली उसके जीन्स में इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। प्यार की बातें चली रही है, तो यू नो पर्सनली तो आपका फेवरेट बाघा और बावरी ही पेयर होगा, लेकिन अपार्ट दैट क्योंकि काफी प्यारे प्यारे पेयर थे शो में, व्हिच इज योर पर्सनल फेवरेट? ऑब्वियसली दया जेठा। If I go to talk about my personal favorite, it has been भिड़े and माधवी. बावली जी आपसे जानना चाहिए कि सेठ जी जो है वहाँ पे दमन चले गए हैं, धानु गए हैं, वहीं पे जो है आपने उनसे वादा लिया है कि आप दुकान में पैर नहीं रखने वाली है। एपिसोड अभी एकदम करीब आ चुका है अभी उस मोमेंट पे, तो क्या बावली ये वादा पूरा करने वाली है या क्या कुछ हो सकता है? बावरी एक बार वादा तोड़ भी सकती थी अगर सिर्फ जेठालाल से बस वादा किया होता, बट अगर आपने एपिसोड देखा है, बावरी ने बाघा की कसम खाई है कि वो कभी जब तक वो नहीं आते तब तक दुकान में कदम नहीं रखेगी। तो बावरी बाघा की कसम तो तोड़ नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। तो बावरी तो दुकान में कदम नहीं रखेगी जब तक वो नहीं आते। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपका फेवरेट पेयर जो है माधवी और आपके पेयर जो है, तो उनकी अगर कोई मतलब क्वालिटीज अगर आपको जो बेस्ट लगती है बताना चाहें? Obviously the chemistry between them, the on-screen chemistry between Daya and Jetha or Bide and Madhvi, you don't see them as an artist. It is so natural that कुछ genuinely एक हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा है और किसी ने चुपचाप आके शूट करके टेलीकास्ट कर दिया, इतना नेचुरल होता है। तो ये बहुत कम एक्टर्स में ये केमिस्ट्री देखी जाती है। तो बस मुझे तो वही पसंद है कि दे आर सो नेचुरल कि ऐसे लगता ही नहीं कि दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ चल रहा है घर में। और या प्लीज़ तारक मेहता के इतने सालों के सफर में इस ट्रैक को कितना स्पेशल मानते हो आप? ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, नॉट ओनली दिस ट्रैक, तारक मेहता के जितने भी एपिसोड्स है या जितने भी ट्रैक्स अब तक आए हैं सारे इंटरेस्टिंग रहे हैं। और आसिफ भाई ने हमेशा इस बात को अंडरलाइन किया है कि हर एक ट्रैक में हर एक स्टोरी में वो कुछ नया लोगों तक लेके आए। बिकॉज मंडे टू सैटरडे एवरी डे कुछ नया लेके आना, वो सोचना और लोगों तक उस चीज़ को लेके आना, हमें ऐसा लगता है कि अच्छा आज का एपिसोड ये आया था, आज ये स्टोरी है या ये स्टोरी चल रही है, लेकिन उस स्टोरी के पीछे इतने लोगों का दिमाग है, इतने लोगों की क्रिएटिविटी है, स्पेशली आसिफ भाई की इतनी क्रिएटिविटी है कि ये सोचना
और जब हमें पता होता है कि हमें रोज़ कुछ नया नया लेके आना है और एवरीडे की चैलेंज कोप अप करनी है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, स्पेशली आफ्टर 18 ईयर्स. सो हेड्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर आसिफ भाई, जिन्होंने इतने साल तक इस शो को इंटैक्ट रखा है, बरकरार रखा है, और जो रिलीजियसली ट्राई करते हैं कि हर एक एपिसोड में या हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ नया लेके आए और लोगों को नॉट ओनली ह्यूमर लेकिन एक अच्छा मैसेज भी शो के द्वारा दे. दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, इतने साल से आप कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, आपके साथ और भी साथी थे जो बीच में चले गए, शो छोड़कर चले गए किसी कारण से, और अब आप तक है, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, ये कितने ब्लेसिंग है, क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से शो में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वी ऑल आर ब्लेस्ड, क्योंकि कोई भी एक आर्टिस्ट होता है वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा शो आए जिसमें वो जो किरदार निभा रहा है वो आइकॉनिक बन जाए. और वी आर ब्लेस्ड के तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नॉट ओनली हम, बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं सब एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स बन गए हैं. सब कैरेक्टर्स के नाम लोगों को पता है, इस कैरेक्टर के नाम से आर्टिस्ट जाना जाता है. सो हाँ, हम ये मानते हैं कि कोई जन के हमारे कर्म होंगे जो इतना अच्छा शो हमको मिला है. वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल हिस्ट्री. मेरा क्वेश्चन काफी से है, मतलब काफी एक नटखट है, जो नाम हमेशा करता है, कोई ऐसी क्वालिटी जो आपके रियल लाइफ पर्सनालिटी से मैच करती हो? इल्ला रियल लाइफ पर्सनालिटी से हाइट बॉडी मैच करती है बस. ट्रेट से एक भी नहीं. एक्चुअली फ्रॉम द मतलब जो आउटफिट वो पहनती है, उसका जो बिहेवियर है, वो सब मेरे से कम्प्लीटली अपोजिट है, क्योंकि मैं इतने कलरफुल आउटफिट्स भी नहीं पहनती. मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है बात. और मैं फास्ट बोलती भी नहीं जितनी बावरी फास्ट बोलती है. मैं बिना सोचे भी नहीं बोलती, कि मतलब मैं 10 बार सोचती हूँ, बावरी तो बिना सोचे बोल देती है. तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वालिटी मेरी बावरी के साथ मैच होती है. बट नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा कोई क्वालिटी याद नहीं. नहीं, शी इज टोटली डिफरेंट. नवीना इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट बावरी इज. लास्टली क्या कुछ कहना है, अजीत सर ने जो है एडवाइस दी है, ये भी कहा है कि ये जोड़ी को स्पेशली काफी प्यार मिल रहा है, पर्सनल एडवाइस ऑन योर प्लेग्राउंड, तो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस थिंग? नहीं, बस मैं शो के लिए, आसिफ भाई के लिए यही कहना चाहूँगा कि इतने सालों से उन्होंने जो मेहनत की है, उनकी मेहनत का नतीजा है आज ये शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा. और दिन रात सोचते हैं वो हर एक किरदार को लेके, हर एक स्क्रिप्ट को लेके, हर एक सीन को लेके. तो ये उनकी मेहनत है, हम तो एक ज़रिया है आप तक पहुंचने का. लेकिन जितना भी जो भी कुछ है बिहाइंड एवरी ट्रैक, एवरी स्टोरी, एवरी लाइन, एवरी कैरेक्टर, इट इज़ हिज ब्रेन. And it is only because of him that everybody is being a part of everybody's home. So yeah, thank you to the producer, thank you to Neela Film Productions, thank you to Tarak Mehta Ka Ulta Chashma for making us a part of this wonderful history. बागा भाई, और एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन रहेगा मेरे से. तारक मेहता के जो व्यूअर्स है, उनके पर्सनल फेवरेट एपिसोड्स की बात की जाए तो बुढ़ापो वाला एपिसोड, जीपीएल और गुत्ती वाला एपिसोड है. वैसे में आप दोनों का पर्सनल फेवरेट एपिसोड कौन सा है अभी तक का? अरे ये तो बहुत ही ऐसे इतने सालों में काफ़ी एपिसोड्स देख भी लिए हैं और कर भी लिए हैं. तो हाँ, अगर मेरा पर्सनल बोलो तो जो बाघा बावरी सगाई का ट्रैक आया था, जहाँ पे जेठालाल आउट ऑफ गुड फेथ मेरे लिए, मेरे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय बनते हैं, तो वो ट्रैक मुझे बहुत मज़ा आया था करने के लिए, अगर मैं मेरी बात करूँ तो. और शो की बात करूँ तो एवरी ट्रैक, स्पेशली GPL 1, 2 and 3 मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट रहे हैं. थैंक यू. राइट, थैंक यू सो मच. जाए अभी शॉट वहाँ पे रेडी है हमारा भैया. थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. Thank you.